वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश्वर भट्ट कॉमर्स क्लास। आज हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच से कुछ रूल सीखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न अप्रोच यानी अमेरिकन अप्रोच एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट, एसेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, लायबिलिटी अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स। It means 5 categories of accounts. First, assets accounts. Assets to run the business. To run the business successfully, the properties of the business are assets. Assets means non-current assets and current assets. Non-current assets means fixed assets which are movable, which can be seen like tangible assets: land, building, machine, furniture. It means which assets are seen and touchable and movable like land, building, machine and furnitures. That are non-current assets yani tangible. What are intangible assets? We cannot be seen or touched like goodwill and patent. Goodwill means prestige value of business. Patent means production right of business. Next, current assets. What are current assets? Current assets are those assets which can be converted into cash within 1 year. Can be converts into assets easily for short time, like stock, debtor, etc. So it means assets account like land account, building account, machine, furniture, debtors, stock and cash. So all these assets, correct assets. Next, capital accounts. What is capital? Invested amount by owner. Which amount is invested by owner? That is capital. It means capital accounts regarding to owner. Relating to owner. Capital account and drawing account. So 2 accounts in this heading. Drawing means whatever amount and goods taken for personal use by owner. Next, liability accounts. Liability, it means which amount payable to outsiders. Which amounts payable to outsiders by business. That is known as liability. Liability is the 2 categories. First, non-current liability, whose payments within more than 1 accounting year. मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा के लिए पेमेंट करना है, more than 1 account year, that is non-current liability. Like long-term loan या बैंक लोन, मतलब 1 साल से ज़्यादा का जिनका पेमेंट करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। अब है करंट लायबिलिटीज। व्हाट आर करंट लायबिलिटीज? जिनका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना है, यानी विद इन 1 ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। विद इन 1 ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पेमेंट टू outsiders, that is current liability. Next, revenue accounts. What are revenue accounts? Revenue means amount received against sale of goods.
एंड सर्विसेज। जो भी अमाउंट हमें सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट मिलेगी वो रेवेन्यू कहलाएगा। अब रेवेन्यू अकाउंट्स में कैसे होगा, जैसे सेल अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, etc. Now, expense account. Expense means to generate revenue, what are the costs incurred in business, that is expense account. Expense means cost incurred to generate revenue, यानी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंस अकाउंट होंगे। जैसे परचेज अकाउंट यानी रॉ मटेरियल, वेजेस अकाउंट, सैलरी पेड, रेंट पेड, एटसेट्रा। अब हम रूल्स करेंगे। रूल्स में हम देखेंगे कि एसेट्स अकाउंट का क्या रूल्स है। एसेट अकाउंट का रूल होगा डेबिट द इंक्रीज करेंगे अगर डेबिट होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे एग्जांपल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख, तो इसमें हमारे दो अकाउंट आ गए, एक कैश एक कैपिटल। कैपिटल मतलब जितने से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है, और इन्वेस्ट हमने कितना किया है वो कैपिटल है, तो 5 लाख। अब कैश से क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। तो कैश क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स, और ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने पे क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और कैपिटल बिजनेस में क्या हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ये क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। एक एंट्री और लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अकाउंट आएगा कैश जो कि एसेट्स है। अब यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है तो हमने पेमेंट क्या होगा, तो कैश हो रहा है डिक्रीज, और डिक्रीज होने पे क्या करेंगे, डिक्रीज होने पे क्रेडिट, तो हमारा हो जाएगा टू कैश अकाउंट। टू को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ये क्रेडिट हो गया, टू से डिनोट करते हैं। और डेबिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज क्या है, एक्सपेंसेस। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमने डेबिट किया, और यहाँ पर कैश डिक्रीज हो रहा है दूसरी एंट्री में, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। नेक्स्ट लेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज, यानी अपोजिट ऑफ एसेट्स अकाउंट। एंट्री देखिए, कैश विड्रू बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज 15,000। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट, ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए जब भी निकालेंगे तो एक ड्राइंग अकाउंट ओपन होगा। ड्राइंग अकाउंट किसके अंडर में आता है, कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में से ड्राइंग माइनस होता है। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ले जा रहा है अपने घर में। तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो इस डिक्रीज होने पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, कैपिटल डिक्रीज हो रही है यानी लायबिलिटी। अब लेंगे यहाँ पर कैपिटल में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, यानी कि एसेट्स डिक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट लेंगे थर्ड, रूल ऑफ लायबिलिटी अकाउंट, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। एग्जाम्पल है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000। तो महेश क्या है यहाँ पर, महेश इज ए लायबिलिटी क्योंकि उसको हमने पेमेंट करना है, और लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। और लायबिलिटी इंक्रीज होने में क्या करते हैं, इंक्रीज होने पे क्रेडिट। तो यहाँ पर हम क्रेडिट किस करेंगे, टू महेश, नाम के आगे अकाउंट नहीं आएगा। और डेबिट किसे करेंगे, परचेज। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो डेबिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट
30,000 टू महेश 30,000। तो ये हो गया आपकी एंट्री। परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट एंड लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। एक एंट्री और लेते हैं, कैश पेड टू महेश। महेश इज आल्सो लायबिलिटी एंड इट इज़ डिक्रीज बिकॉज हम पेमेंट कर रहे हैं उसको। और कैश एसेट्स, और एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज। इट मीन्स लायबिलिटी डिक्रीज एंड पेमेंट यानी एसेट्स कैश डिक्रीज। तो क्या रूल है इसका, एसेट्स डिक्रीज होने पे क्रेडिट टू कैश अकाउंट, और महेश लायबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट, तो महेश डेबिट 15,000। तो इट मीन्स एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। नेक्स्ट है रूल फॉर रेवेन्यू अकाउंट, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू हरी 50,000 रुपये। अब हरी क्या है, हरी इज ए डेटर, जिसको हम सामान उधार बेचते हैं डेटर है, और डेटर क्या है, एसेट्स। और जब एसेट्स है तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हमने इसको सामान बेचा तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने पे एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हरी डेबिट 51,000। और क्रेडिट किसे करेंगे, सोल्ड यानी सेल्स। सेल्स क्या है, इनकम यानी रिवेन्यू। तो रिवेन्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, तो टू सेल्स 51,000। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि एसेट्स इंक्रीज डेबिट एंड रिवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। और नेक्स्ट है एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। यानी कि डेबिट तब करेंगे जब इंक्रीज होगा, और एक्सपेंसेस डिक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे। अब देखिए सैलरी पे 18,000, तो सैलरी क्या है, आपका एक्सपेंसेस है, और ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। और पेमेंट कितना हो रहा है कैश का, कैश हो रहा है डिक्रीज, यानी कि क्या है, एसेट्स। और एसेट्स डिक्रीज होने पे क्या होगा, क्रेडिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब एसेट्स एंड एक्सपेंसेस में पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, और कैपिटल, रिवेन्यू एंड लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, डिक्रीज होने पर हम उसको डेबिट करेंगे। तो ये थे मॉडर्न अप्रोच। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो।